जी। Okay. Assalamu alaikum and good afternoon. I'm your host Isha Fatma and I welcome you to our webinar series hosted by the Center of Law and Security. Today's topic will be the Indus Water Treaty, a year since suspension. And we have two esteemed guests here to discuss with us this subject matter. Firstly, we have Dr. Hassan Abbas, who is an expert in hydrology and water resources. And we have Supreme Court advocate and lecturer Yasser Athwar. We are also joined by the executive director of the Center for Law and Security, Sarama Nazir. And the format for this webinar will be bilingual. And now we can proceed with the discussion. The first question will be directed towards Dr. Hassan. So my first question is, why does the legal uncertainty surrounding the IWT directly threaten the agricultural breadbasket of Pakistan and its long-term food sovereignty? Okay, first of all, I beg to differ with the preamble that was shared, the concept note that was shared, the first line that I beg to differ with, which says that this is one of the best water cooperation formula in the world, the Indus Water Treaty, because this is not supported by facts. This is not supported by the evidence. Indus Waters Treaty is, as I see it as a hydrogeologist and as a water expert, it is, I think, the worst water division and distribution formula ever devised on this scale between any two countries. Because this is the only treaty in the world which not only allows shutting down, complete shutting down of three major rivers, it also allows pollution. There is no treaty in the world whatsoever which allows pollution by the upper riparian. So just go to the counterfactual. The counterfactual that imagine there is no treaty, imagine there are no international laws, imagine the upper riparian is so powerful that lower riparian can't do anything about it. And what a maximum upper riparian in that case can do? They will divert all the water which can be diverted. They can dam and start producing hydropower where diversion is not possible. And they will dump all the pollution they can onto the lower riparian. Indus Water Treaty did all of it. All the feasible places where diversion could have been built was allowed to be built. The rest of the water or the river systems which could not be diverted, unlimited number of hydropower production was allowed. And then finally, by name, 4 wastewater drains appear in the treaty, which allow pollution of unlimited quality and unlimited quantity. So, in other words, this is not a treaty which saved Pakistan a bit. So, when you coming down to your question that is it going to threaten our food security, blah, blah, blah? No. Our western rivers, which are giving us water, are not protected by the treaty. They are protected by geography, not Right. generosity. So that is the Right. basic thing, that treaty or no treaty, सो आपका कहना है कि उस पर violation or कोई no फर्क नहीं violation. पड़ता। आपका कहना है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, लेट मी इंक्लूड यासिर राठौर साहब इन दिस डिस्कशन एज वेल। यासिर राठौर साहब, अब एक ट्रीटी है जो 1960 से जो वो चला आ रहा था, जिसको 1 साल हो गया, इंडिया ने उसे जो है वो इन अबेंस कर दिया है। पाकिस्तान के पास अब लीगल ऑप्शंस जो है वो क्या दिखते हैं? क्योंकि देखिए, एक अपर राइपेरियन स्टेट है जिसके साथ हमारा एक झगड़ा भी चल रहा है। वो हमें कहते हैं कि ये टेररिज्म करते हैं, इस वजह से जो है वो हम
इनका जो है वो पानी रोक रहे हैं, इनको पेनलाइज करने के लिए। सो व्हाट ऑप्शंस डू यू सी कि जब वो अबेंस में भी है और उसके ऊपर इंडिया ने कोई क्लैरिटी भी नहीं दी, कोई उसके ऊपर कम्युनिकेशन भी नहीं होती, और एक वेग सी सिचुएशन में इवन पाकिस्तान को जो है वो रखा हुआ है। तो हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन एंड व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर अस? Rahman Saab, I will start by firstly and foremostly agreeing with Dr. Saab when he said that this is one of the worst treaties that have been signed thus far. मैं उसकी बहुत एक लीगल पर्सपेक्टिव से उसके ऊपर आपको बताऊंगा। फर्स्टली देखें, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो मैकेनिज्म है, इट हैज़ टू बी वेरी प्रिसाइज एंड इट हैज़ टू बी वेरी स्टेप वाइज। पैरेलल प्रोसीडिंग्स का एक बहुत बड़ा सवाल अब उठ चुका हुआ है कि न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास साथ प्रोसीडिंग चलेंगी या कोर्ट ऑफ अपील, सॉरी, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के सामने प्रोसीडिंग्स चलेंगी। करंटली बोथ ऑफ देम आर रनिंग एट द सेम टाइम, पैरेलल चल रही हैं और दोनों ने अपने एंड से जुरिस्डिक्शंस अज्यूम कर ली हुई हैं। हम्म। As far as the treaty itself is concerned and the words which have been incorporated within the treaty, कोई further mechanism नहीं दिया गया। Let's say both of us, both Pakistan and India agree to the jurisdiction of one of them, उसकी जी। इन्फोर्समेंट के ऊपर भी आगे सवाल आ जाता है। द ट्रीटी इटसेल्फ इज कंप्लीटली साइलेंट कि वो इन्फोर्स कैसे किए जाएंगे डिसीजंस को। हाँ। जहां तक आपका सवाल पर्टिकुलरली रहा कि हमें चैलेंजेस क्या फेस करने हैं, ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। देखिए, ये सारा प्रोसेस हमारा, इंडिया ने रीनिगोशिएशन की बात की। उन्होंने कहा कि जी ट्रीटी हमें रीनिगोशिएट करने की जरूरत है, विच इन माय पर्सनल ओपिनियन इज द वे फॉरवर्ड। रीनेगोशिएशन जब तक नहीं होगी एंड ऑब्वियसली म्यूचुअली जब तक रीनेगोशिएट नहीं होंगे मामला, तब तक ये चीज आगे नहीं चल सकती है। देर इज नो अदर इंटरनेशनल फोरम जो एज एन एनफोर्सर पाकिस्तान की मदद इस अच्छा। सिनेरियो में कर सकता है। वी हैव अप्रोच द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, वहां पर अब अलग एक वोटिंग का पूरा सिस्टम है, वीटो पावर्स मौजूद हैं। आई थिंक इट्स मोर पॉलिटिकल rather than a dispute resolution when we राइट। see it from that perspective. We have approached the United Nation, जो इनका प्रेसिडेंट है जनरल असेंबली का। We have almost exhausted all our options. हम्म। प्रैक्टिकली हमारे पास अब कोई खास ऑप्शन रह नहीं जाती है अदर देन रीनेगोशिएटिंग। उसमें भी सबसे हाँ, प्राइमरी इसमें सवाल देखिए, इसमें अगेंस्ट। एक चीज तो है कि पाकिस्तान का जो स्टांस है वो तो री इन्फोर्स हो रहा है। जो एडवाइजरी हमने नोट्स देखे हैं, जिन फोरम्स के ऊपर जो है वो गया है, सो पाकिस्तान की लीगल पोजीशन तो उससे री इन्फोर्स हो रही है। क्या उससे कोई फर्क पड़ता है? सर देखें, इंटरनेशनल लॉ का पूरा कॉन्सेप्ट एक नोशन के ऊपर बिल्ट हुआ है, विच इज म्यूचुअल कॉपरेशन। हम्म। There is no international body which can enforce their decisions against against a country, जब तक वो खुद कंट्री या तो कंसेंट नहीं कर रही या तो इन गुड फेथ उसको एग्री नहीं कर रही और अपने ऊपर बाइंडिंग नहीं समझ रही है। जी। एज लॉन्ग एज कोई इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म हमारे पास मौजूद नहीं होगा, इंडिया ना करती रहती है चीजों के ऊपर, उसके ऊपर कहाँ से इन्फोर्स करवाएंगे हम कोई भी अच्छा। डिसीजन। अच्छा, ठीक है। हसन अब्बास साहब, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस, बीइंग अ वाटर एक्सपर्ट? मतलब पाकिस्तान एंड इंडिया आर नॉट इन ए यूनिक पोजीशन जहां पर दरिया एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जा रहे हैं। यहाँ तो दरिया जाते हैं, वापस आते हैं, देयर देयर इज अ लॉट हैपनिंग। और उन मुल्कों के आपस के झगड़े भी हैं। ये ऐसा भी नहीं है कि बाकी दुनिया बड़े सुख चैन के साथ जो है वो रह रही है और उनका पानी के ऊपर कोई झगड़ा नहीं है। सो हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? क्या वाकई एनफोर्समेंट और कोई मैकेनिज्म नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन का कोई तरीका नहीं है? देखिए, ये जो पाकिस्तान की जो वाटर सिक्योरिटी है ना, जी। उसका जो वर्स्ट केस सिनेरियो है, दैट इज नॉट हाइपोथेटिकल, दैट हम्म। हैज ऑलरेडी हैपेंड। यानी जो कुछ वो कर सकते थे उनको ट्रीटी ने लीगलाइज्ड कर दिया, उनके उन एक्शंस को। और इसमें थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ेगा हिस्ट्री में पीछे जाके कि जब ये चीजें इतनी क्लियरली पाकिस्तान के अगेंस्ट थी, तो व्हाट फोर्स्ड पाकिस्तान इनटू साइनिंग सच एन एग्रीमेंट? यानी आपने तो कुछ भी नहीं ना लिया उनसे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप तसल्ली रखें, मजीद कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है एक्चुअली इस पे, क्योंकि अगर हम डिटेल में जाएंगे तो फिर सारा वेबिनार इसी पे निकल जाएगा। जी आई जी नो व्हाट यू यू आर रेफरिंग टू। जी और जी। उस वक्त वहां पे मीडिया में बहुत इस हवाले से रिपोर्ट भी हुआ। मैं चाहता हूँ जरा उससे आगे चले और अभी की बात कर लें कि अभी जो है वो हमारे पास अब क्या ऑप्शंस हैं, क्या चैलेंजेस हैं और क्या सिचुएशन है।
हमारे पास जो ऑप्शंस है ना इस वक्त, हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अच्छा। और अपॉर्चुनिटीज़ में जो सबसे बड़ी हमारे पास इस वक्त अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि हम भी इस ट्रीटी से बाहर निकल जाएं। क्योंकि द अच्छा। मोमेंट वी आर आउट ऑफ दिस ट्रीटी, तो फिर इंटरनेशनल रूल्स, नॉर्म्स और कस्टम्स जो है ना वो अप्लाई होती हैं। और उसमें अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है आईएलए की, इंटरनेशनल लॉ एसोसिएशन की, जिसमें हम्म। ये ग्रेजुअली चीज़ें डेवलप हो रही हैं दुनिया में, तो उसमें जो 2024 के बर्लिन रूल्स हैं ऑन हम्म। इंटरनेशनल वाटर्स, मेरे ख्याल में वो हमें एक बहुत अच्छा जो है वो प्लेटफॉर्म देते हैं कि हम उसकी बेस के ऊपर इंटरनेशनली अपना जो है वो स्टांस उसको प्रोजेक्ट करें अगेन। लेकिन डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये हमें ज़रा समझाइए कि क्या ये पूरा जो एक पैराडाइम बना हुआ है, जो इतने मतलब अब तकरीबन 60 सालों से जो है वो 65 सालों से चल रहा था, वो कोलैप्स नहीं कर जाएगा? उसमें हमारा तो कोई नुकसान नहीं है, हमें तो उसमें सिर्फ फायदा नजर आता है उसके कोलैप्स होने में। और मेरे ख्याल में द बेस्ट इज दैट इट इज कम्प्लीटली कोलैप्स्ड। क्योंकि बात यह है कि जो मसलन अ, इंडिया ने क्यों कहा था कि हम रीनिगोशिएशन चाहते हैं, जबकि अगर आप अपरेंटली देखें तो इंडिया को तो सब कुछ मिल चुका था। तो फिर वो क्यों रीनिगोशिएशन चाहते हैं? उनको पता है कि वो मजीद पानी डाइवर्ट नहीं कर सकते, जितनी वो पोल्यूशन फेंक रहे हैं उससे ज्यादा नहीं फेंक सकते, जितना पानी वो डाइवर्ट कर सकते थे कर चुके हैं, वो मजीद इसमें से कुछ नहीं निकाल सकते। तो फिर ये मोदी साहब ने रीनिगोशिएशन की बात 2016 में क्यों की थी? ये 2016 से चीजें जो है ना ये इस नई डगर के ऊपर आ रही हैं, जिसकी कल्मिनेशन जो पिछले साल हुई थी, एग्री। उन्होंने कहा कि हम एग्री। डिफेंस में करें। ठीक है। उनका मसला क्या था? उनका मसला ये था कि जितने भी जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म है और जो वेस्टर्न रिवर्स जो वो डाइवर्ट नहीं कर सकते उनके ऊपर उन्होंने हाइड्रो पावर की इजाजत ले ली। और उसमें कोई नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो इंडिया कर सकता है वो लिमिटेड नहीं है, बहुत से प्रोजेक्ट्स वो कर सकते हैं। जैसे ही वो कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो अकॉर्डिंग टू ट्रीटी दे हैव टू शेयर द इंफॉर्मेशन विद पाकिस्तान। जी। और उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं उन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे कि ये उसकी डैम की हाइट कितनी होगी, स्टोरेज कितनी होगी, स्लूस गेट अच्छा। कहाँ पे लगाएंगे, वगैरह वगैरह। तो पाकिस्तान के इंजीनियर्स और पाकिस्तान के जो वाटर मैनेजर्स हैं वो उसके ऊपर कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगाते हैं। वो ऑब्जेक्शन चली जाती है आर्बिट्रेशन में। आर्बिट्रेशन में कुछ फैसले होते हैं, कुछ थोड़ा बहुत पाकिस्तान के फेवर में फैसला हो जाता है, कभी थोड़ा इंडिया के फेवर में फैसला हो जाता है। लेकिन उसमें दो चीजें देखने वाली हैं। एक तो ये कि जी। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो प्रपोज हुआ और फिर नहीं हुआ, यानी कि हम्म। रिजेक्ट कोई प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट हैव राइट। गॉन फॉरवर्ड एनीवे, वो बिल्ट हुए हैं। ओके। किशन गंगा भी बिल्ट हुआ, बगले हार भी, सलाल भी, जितने भी गए। हम्म। लेकिन इसमें जो नुकसान इंडिया का हुआ है वो ये हुआ है कि उनके प्रोजेक्ट इस आर्बिट्रेशन की वजह से डिले हुए हैं। डिले में क्या है, कोई भी सिविल इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट हो, अगर वो डिले हो तो उसको वो कॉस्ट ओवररन्स में जाता है। तो इंडिया राइट। को ये था कि भाई आप एक प्रोजेक्ट बना के आप कहते हैं जी मैं 2 साल के बाद अपने इतने लोगों को इतनी बिजली दूंगा, पता चलता है कि 2 साल तक आर्बिट्रेशन चल रही है, वो जो लोगों को बिजली देनी थी अभी तक नहीं मिली। ये एक सोशल नुकसान हो गया, इकोनॉमिक नुकसान हो गया, प्रोजेक्ट डिले हुआ, चीज़ों की कीमतें बढ़ गई। ये सब कुछ होने के बाद वो चाहते थे मोदी साहब और इंडिया वाले कि यार ये जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म है हाँ। इसको स्ट्रीमलाइन किया जाए ताकि प्रोजेक्ट डिले ना हो। दैट वाज ठीक। द तो ओनली सो थिंग। दिस वाज द रीजन, व्हाट यू आर सेइंग इज कि दिस वाज द रीजन कि जिसकी वजह से इंडिया वांटेड टू गेट आउट ऑफ दिस ट्रीटी। जी जी, अच्छा। और वो जो रीनिगोशिएट करते हैं वो भी इसी पॉइंट पे करना चाह रहे हैं ओके। जी। अच्छा, मैं यासिर साहब, जो इंडस वाटर ट्रीटी इज डिफरेंट फ्रॉम जो हम दीगर इंटरनेशनल लॉ जो कस्टम बेस्ड हैं उनकी हम बात करते हैं, थोड़ा सा ज़रा उससे मुख्तलिफ है, जो आईएचएल है या बाकी डोमेन्स हैं। यहाँ पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान चीज़ें बड़ी स्पेसिफिक हैं, जिस तरह से हसन अब्बास साहब ने बताया कि कोई प्रोजेक्ट होगा, उसके लिए परमिशन होगी, डिज़ाइन अप्रूव होंगे, इंटीमेशन होगी, डाटा शेयरिंग होगी, कम्युनिकेशन होगी। इसकी एनफोर्समेंट भी हुई है। हमने देखा पास्ट के अंदर कुछ जो डिस्प्यूट्स अराइज किए उनके ऊपर जो है जो वर्डिक्ट्स आई वो दोनों तरफ ने जो है वो मानी भी। अब आपको क्यों लग रहा है, व्हाई आर यू सेइंग कि इसका जो है वो कोई एनफोर्समेंट का जो है वो कोई तरीका नहीं है? आई मीन एक इम्प्रेशन ये भी है आम लोगों में कि सिवाय हम खत लिखने के और एतराज करने के और ऑब्जेक्शन रेज करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। So देखिए, there is a, I'll keep my answer short to this, and there is a two-tier answer to this. जी। अभी तक जो जो इम्प्लीमेंटेशन या इन्फोर्समेंट की आप बात कर रहे हैं हुई है वो एग्रीड अपॉन थी
एंड इंडिया itself agreed कि मैं इसको इन्फोर्स कर लूंगा. व्हेन इट कम्स टू द पेपर इटसेल्फ, द इंडस वाटर ट्रीटी वो पर्टिकुलरली हमें लिख के ऐसा नहीं बताता कि अगर कोई नहीं मानता किसी भी डिसीजन को तो आगे नेक्स्ट स्टेप क्या लिया जाएगा. विच इज वाई करंटली वी आर एट अ स्टैंड स्टिल पोजिशन, जिसकी वजह से बेंस का वर्ड भी इस्तेमाल किया गया. फॉर्मली ट्रीटी ठीक। खत्म नहीं हुई, बट एट द सेम टाइम अबेयंस में है, स्टेलमेट हो चुका है, आगे कुछ भी उसके ऊपर वर्किंग नहीं हो पा रही है. So हाँ। when it comes to law, when it comes to the legality of things, and when it comes to the holistic perspective of drafting an agreement or a treaty, आपको हाँ। उसके सारे एंगल्स और perspectives देखने पड़ते हैं. Considering the fact कि 1947 से onwards, through and throughout, it's a understanding between each and every citizen of either Pakistan or India कि ये दो नेबरिंग ममालिक जो हैं इनका आपस में मामला ठीक नहीं है. हम्म। अब अगर हम लोग मान जाते हैं उनकी बात इन इन गुड फेथ, इन फ्रेंडशिप, तो ठीक है, सब चीजें सही तरीके से चलती रहेंगी. हम्म। 3 जंगें हुई, 3 जंगों का नतीजे में ये ट्रीटी एग्जिस्ट करती रही, ये ट्रीटी चलती रही. अब आके अचानक से इंडिया का कह देना कि जी हम अबेंस में हैं और अब इसको हम फॉलो नहीं करेंगे, दैट डिटर्मिन्स द इंटायर प्रैक्टिकल सिचुएशन व्हेन इट कम्स टू इन्फोर्समेंट. एक साइड ने कह दिया कि हम नहीं मानेंगे, स्टेलमेट पोजीशन आ गई, देयर इज नोबडी हु कैन कम एंड से. जो तीसरा सिग्नेटरी था उसने भी बार 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 कहा कि जी वी आर मेयर फैसिलिटेटर्स, वी कांट डू एनीथिंग मोर देन दैट. लेकिन वाइल जो उन्होंने इसको रिवोक नहीं किया या इससे वो बाहर नहीं निकल गए, सो डू यू थिंक अबेंस इज द फर्स्ट स्टेप, या फिर आपको लगता है कि वो अबेंस के जरिए को प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं या इस चीज को जो है वो ड्रैग करना चाहते हैं? से डेफिनेटली ड्रैग करना चाहते हैं, और ड्रैग So they don't करके want to get out नेगोशिएशन of की. it. They don't want to get आई out of it. आई डोंट थिंक दे वांट टू गेट आउट ऑफ इट, बिकॉज दिस इज सच अ, ये ट्रीटी बनी भी इस वजह से थी कि अगर डेली बेसिस के ऊपर, मंथली बेसिस के ऊपर हर इशू अराइज होने पे नेगोशिएशन करनी पड़े तो इट्स गोइंग टू डिले थिंग्स अ लॉट मोर एज कंपेयर टू, बेशक एक अच्छा नेगोशिएटेड नहीं ट्रीटी, बट देर इज स्टिल समथिंग, देर इज स्टिल एन ऑब्लिगेशन, हाँ, देर इज अ ठीक। कंप्लीट सेटअप विच हैज बीन बेस्ड ऑन दैट ट्रीटी. ठीक, right. सो I आई think डोंट. Isha has a question. मेरा ख्याल है प्लीज. let's just hear from Yeah. Isha. जी. Yeah, my question from Advocate Yasser would be that why would a complete collapse of the IWT be more legally and economically catastrophic than maintaining the current flawed and suspended state? देखें, 1960 के अंदर एक ट्रीटी बनी, एंड to a certain extent, in fact, to a great extent, for हम्म। all these years, that treaty was being followed. कभी हो रही थी, कभी नहीं भी हो रही थी बीच में, बट as in looking at the bigger picture, वो follow होती आई. उसी की बेसिस के ऊपर बहुत से सिस्टम्स बने, बहुत सी प्लानिंग हुई उस चीज के ऊपर. नाउ इफ सडनली वी से कि ये ट्रीटी एग्जिस्ट ही नहीं करती एंड वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, बी इट हम्म। पाकिस्तान और इंडिया, practically I don't think that would be a viable solution for either of the countries, अच्छा। because their entire planning, again, it's not a 1 week planning or a 2 week planning or a monthly planning. ये सालों के ऊपर ये प्लानिंग चलती आ रही थी. उस इन इन सारे सालों में पाकिस्तान had a lot to do within Pakistan as well. जो काम उनको पाकिस्तान के अंदर करने चाहिए वो हुए नहीं हुए, दैट इज अ कंप्लीटली सेपरेट डिबेट इन इटसेल्फ. हम्म। बट एक सडन कोलैप्स इज गोइंग टू फर्स्टली डैमेज इंटरनेशनल लॉ इटसेल्फ एज वेल. द इंटायर कॉन्सेप्ट के जी म्यूचुअली पार्टीज एग्री कर रही हैं और उनको बाइंडिंग लेके चलेंगी. वियना कन्वेंशंस की वी हैव मल्टीपल आर्टिकल्स सच एज आर्टिकल 26 एंड 27 जो कहते हैं कि ट्रीटी को बाइंडिंग ही होना चाहिए और उसको फॉलो इन गुड फेथ करना चाहिए. That the system is going to start collapsing, and this would be a major, this would be a starting point from other for other countries as well to set up an example कि जी पाकिस्तान इंडिया की ट्रीटी इस तरीके से खत्म हुई है, हम आहिस्ता आहिस्ता अब इंटरनेशनल लॉ से मूव अवे करना राइट। शुरू हो ठीक। जाएंगे. राइट, अब जरा मैं कंक्लूजन की तरफ जाना चाहता हूँ। हसन अब्बास साहब, लाइक आई आस्क्ड यासिर साहब, आपको लगता है ये अबेंस में ही इंडिया इसको रखेगा, इसको रिवोक करेगा और इससे बाहर निकल जाएगा, या फिर दे विल कम बैक टू दिस ट्रीटी? देखिए, इंडिया का सिर्फ एक मकसद था इस चिट्ठी को इस जी। तरह करने का कि वो उस आर्बिट्रेशन वाले चक्कर से निकलना चाहते थे और अपने हम्म। प्रोजेक्ट्स को तेज करना चाहते थे, और ये प्रेशर था प्रोजेक्ट डेवलपर्स की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। हम्म। और मोदी साहब ने उनकी इस प्रेशर में आके ये इकदाम किया है, जो भी उन्होंने अबेंस वगैरह का किया है।
अब इसमें यह है कि अब वो जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने जो शुरू किए हुए थे, जिनके ऊपर कोई पाकिस्तान की ऑब्जेक्शन चलनी थी या चल रही थी, वो सारी के सारा काम जो है वो लीगल साइड वाला रुक गया, और कंस्ट्रक्शन साइड वाले के ऊपर इस वक्त वो पूरी फोर्स के साथ अपने वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के ऊपर इस वक्त वो काम कर रहे हैं। लेकिन उनका कोई भी जो किया हुआ काम है वो पाकिस्तान को सिग्निफिकेंटली, बल्कि आई वुड से कि डैमेज कर ही नहीं सकता। सिग्निफिकेंट लफ्ज तो बहुत But बहुत not बड़ा even लफ्ज। in Hassan Abbas sahab, on their projects on Chenab जी जी, या चिनाब पे भी कुछ नहीं कर झेलम पे। सकते जी। देखिए, हाँ, मैं आपको जी मोटे मोटे अगर जी नंबर्स जी। दूं ना इसमें, चिनाब का जो हाँ, मीन अगर एनुअल ब्रीफली फ्लो है अगर ना। जरा थोड़ा सा ये पॉइंट जी समझा जी, दें, क्योंकि ये तो जाहिर बात है मेन हाँ मेन जी। इशू ही इनके ऊपर देखिए, है। पंजाब का जो मीन एनुअल फ्लो है ना, वो जी। तकरीबन 20 MAF के लगभग है। ठीक है, अच्छा। से 15 to 20 MAF मीन एनुअल फ्लो आता है। जो हम्म। इस वक्त उनके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, और उसके बीच में जो लाइव स्टोरेज है, जो 100% कभी भी खाली नहीं होती, जी। अगर उसको आप 100% भी खाली करें, तो वो इस वॉल्यूम का तकरीबन 2 से 4% बनता है। और जो ठीक। उनके एग्जिस्टिंग प्लान प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे भी ऐड कर दें, तो ये परसेंटेज बढ़ के तो 7% तक जाती है। और अगर वो ये पूरे के पूरी स्टोरेज को इस्तेमाल करते हैं, मीन्स कि वो पानी को रोकते हैं, तो वो 5 से 6% पानी आपका नहीं रोक सकते। और अच्छा। जितनी देर के लिए वो रोकते हैं, उतनी देर के लिए उनकी अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती। ठीक। हम्म। तो इसलिए अगर उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, तो उन्होंने दे हैव टू लेट द रिवर फ्लो फ्रॉम देयर ओके। डैम्स। तो ठीक है इसलिए तो। ये वायबल नहीं है ये। हाँ, मीडिया में ये चीज बहुत मतलब है कि वो लोगों को डराने धमकाने के लिए कि जी पता नहीं क्या हो जाने लगा है, पाकिस्तान खुश्क हो जाएगा। कुछ भी नहीं होने लगा। अच्छा। एक तो ठीक। ये चीज है, ये मिथ मैं तो ब्रेक अब करना जरा चाहता उस सवाल पे वापस आ जाएं जो मैंने पूछा था कि अबेयंस रहेगी, रेवोकेशन होगी, या फिर जो है वो ये वापस आ जाएंगे। हूं। सर, उनके तो फायदा इसी चीज में है कि वो इसको अबेयंस में रख के अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करें और फिर वापस आ जाएं, ये उनका लिए फायदा है। लेकिन हम्म। हमारे लिए फायदा इस वक्त इसमें यह है कि हम इस मौके का फायदा उठा के ट्रीटी से निकल जाएं, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा हमारा परपेचुअल नुकसान हो रहा है। ठीक है, जो जी पानी जाना था ना वो तो चला गया, जी। उसका आना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो पोल्यूशन आ रही है और आती जा रही है, और हमारे फूड चेन के बीच में बहुत ज्यादा वो जो है वो नुकसान कर रही है हमारी हेल्थ का और ठीक। हमारे फूड सिस्टम का और ड्रिंकिंग वाटर का, उसके ऊपर हम इंटरनेशनली केस टेकअप कर सकते हैं ठीक। आफ्टर वी गेट आउट ऑफ दिस ट्रीटी, क्योंकि हमने राइट। अलाउ किया हुआ है कि वो गंद आएगा वहां से। और द ठीक। मोमेंट वी से कि भाई हम अब ट्रीटी का पार्ट नहीं है, तो हम सबसे हाँ। पहले जाके इंटरनेशनल कोर्ट में। और देखिए, इस वक्त दुनिया एनवायरनमेंट पे और पोल्यूशन पे बहुत सेंसिटिव है। हम्म। जितनी हमारी आर्बिट्रेशन हुई है, उसमें जो हमारी सबसे बड़ी सक्सेस है वो किशन गंगा जी। के ऊपर एनवायरमेंटल फ्लो की है। हालांकि ट्रीटी में ठीक। एनवायरमेंटल फ्लो का जिक्र नहीं है, लेकिन क्योंकि आज ग्लोबल माइंड का वो हिस्सा है, जब हमने एनवायरमेंटल फ्लो की बात की, तो इंटरनेशनल जो आर्बिट्रेशन थी उसने कहा कि यस, एनवायरमेंटल फ्लो विल बी अलाउड। और इंडिया जो उसमें एनवायरमेंटल फ्लो का उसने मेरे ख्याल में 3 MAF का पानी रखा हुआ था, इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा कि आप 9 MAF देंगे, अबाउट ठीक। 3 times मोर देन ठीक। व्हाट दे वांटेड टू तो होल्ड। आपके तो ख्याल में बेसिकली पाकिस्तान के लिए ये ज्यादा बेहतर लीगल ऑप्शन ये हो बहुत सकती बढ़िया है। ऑप्शन है, क्योंकि वो ठीक। आपके ग्लोबल माइंड के साथ अलाइन होता है जी। राइट। अच्छा, यासिर साहब, योर फाइनल कमेंट जी, वी हैव फ्यू सेकंड्स लेफ्ट, Well, I'll, व्हाट I'll, वुड I'll यू say, look, रेकमेंड? I'll definitely say one thing. डॉक्टर साहब ने बात की है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, दैट वी विल हैव अ लीगली वाइबल केस और हम वहाँ पे फाइल कर सकते हैं. I'll just put a very small sentence here. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बहुत सी ऐसी रूलिंग्स की हैं जो वी ऑल अंडरस्टैंड कि दुनिया में वो फॉलो नहीं भी हुई हैं. And ठीक। International Court of Justice again does not have a very forceful enforcement mechanism. ऐसा नहीं है कि वो पूरी दुनिया की फौजें इकट्ठी कर देगा और वो चीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए आ जाएगा. सो केसेस होते रहेंगे, वो डिले भी होते रहेंगे. जी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की रूलिंग, लेट्स से वी फाइल अ केस टुमारो, वी प्रॉब्ली गोइंग टू हैव जजमेंट ऑन इट आफ्टर 5 years. उस पांच राइट। साल के दौरान किस तरीके से सिस्टम चलेगा, किस तरीके से लेके जाएंगे, दैट इज अ होल क्वेश्चन इन इटसेल्फ. ठीक। अब ठीक। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड रीनिगोशिएटिंग फैक्टर इस चीज के अंदर. इंटरनेशनल लॉ को भी अपहोल्ड करेगा वो, एक गुडविल का रिलेशनशिप भी आपस में अपहोल्ड रहेगा एज कम्पेयर. हम्म। एंड इवेंचुअली व्हेन इट डज कम टू इंटरनेशनल लॉ, इट्स मोर पॉलिटिकल
then it is within the sovereign state itself कि जी राइट हमारे पास पुलिस भी मौजूद है, हमारे पास और डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं जो जाके इन्फोर्स कर सकें और चीज़ों को। पॉलिटिकली मेरे ख्याल है थोड़े हमारे हालात आजकल ठीक भी हैं, सो वी माइट एक टेक छोटा I सा think we कमेंट should अगर मुझे utilize it. इजाजत I हो, छोटा छोटा सा जी एक कमेंट। देखिए, जी जी हम जी जी हम लॉ और हाइड्रोलॉजी की बात कर रहे हैं। व्हाट इज हाँ मिसिंग बिटवीन अस इज ए पर्सन फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस। क्योंकि जब तक ठीक, इंटरनेशनल रिलेशंस को आप बीच में नहीं लेके आएंगे ना, बिल्कुल क्योंकि ठीक, लॉ में कोर्ट की विक्ट्री जो है ना, दैट इज नॉट गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, लेकिन दैट विल गिव अस समथिंग, सम पॉलिटिकल एडवांटेज समवेयर राइट एल्स। और उसके लिए राइट, हमारे पास इंटरनेशनल रिलेशंस के लोग भी होने चाहिए कि वो बिल्कुल ठीक, देखेंगे भाई आप कोर्ट में इसलिए नहीं जा रहे कि आपको पानी वापस मिल जाएगा या पोल्यूशन फौरन बंद हो जाएगी। हाँ। आप कोर्ट में इसलिए जा रहे हैं कि आप मॉरल हाई ग्राउंड पे चले जाते हैं, एंड देन यू कैन टेक और पॉलिटिकल वो एडवांटेज। लेजिटिमेसी बेसिकली जी आपको जी वहां से वो जी मिलती जी, है, इसलिए राइट, वो थोड़ी सी ठीक है, इंटीग्रेट करना है हमने इंटरनेशनल रिलेशंस वालों को इसके बीच में। राइट। जी ओवर टू यू ईशा फॉर कंक्लूजन जी। Okay, thank you so much for such a wonderful and comprehensive discussion. Our guests have provided us with a great deal of perspective today, and we hope to have you all back soon. And thank you so much. राइट, थैंक यू सो thank you मच so much. हसन It अब्बास has साहब, been a यासिर pleasure. राठौर साहब, इट वाज अ थैंक यू यासिर प्लेजर, साहब, थैंक यू सो थैंक यू मच जी। रहमान Thank you, साहब, Hasan Saab. थैंक यू ईशा। It's a pleasure, जी. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। Love this.